Hello folks and friends. Today we are going to discuss the Coulomb's law, which is the first topic of electrostatic portion. So what is Coulomb's law? Actually the Coulomb's law states that the force between two very small objects, point charges, separated in a vacuum or a free space by a distance, which is large enough compared to their size and is directly proportional to the magnitude of their charge and inversely proportional to the square of the distance between them. Now point charge is an electric charge with no dimension of when the distance between two charges is much bigger than the size of the charges. Charles Augustin de Coulomb, an officer in the French army, performed an elaborate series of experiments using the delicate torsion balance to determine the quantitatively the force exerted between two objects, each having the static charge of electricity. Now, in Coulomb's law, we know that the electron and protons are characterized by the property by virtue of which they exert force of attraction or repulsion on one another. This property is called the charge. Means the charge is a property of attraction and repulsion exhibited by any particle, or it is a fundamental property of subatomic particles like electron, proton, and neutron that they attract or repel each other. This is the type of charges which we usually see, that a positive charge is known as a proton, negative charge is known as an electron. So charge can be of two types, positive or negative. And the law of conservation of charge states that the charge can neither be created nor be destroyed, but it can transform from one surface to another surface. Now, what the Coulomb's law says? The Coulomb law says that force of attraction and repulsion between any two charged particles is directly proportional to the magnitude of their charges. Means के अगर हमारे पास कोई भी दो charged particles हैं, like Q1 and Q2, the force of attraction between these two charges would directly proportional होगी magnitude of the charge 1 and the magnitude of the charge 2. So we can say that the force is directly proportional to the product of their charges. इसी तरह से यही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है उस पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी, विच इज आल्सो फॉलोड बाय द इन्वर्स स्क्वायर लॉ. सो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन we can say that is directly proportional to the Q1 and Q2 over R square. Now, if we remove the sign of proportionality, so we can put the constant k. कुछ बुक्स में इसको k लिखा गया है, कुछ बुक्स में इसको c लिखा गया है. It's all okay. आप चाहे k यूज कर लें, चाहे c यूज कर लें, not a big deal. So this k is basically equal to what? This is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. और ये k की जो वैल्यू है that will be equal to around 9 into 10 to power 9. अब अगर हम पता करना चाहें कि इस फोर्स का यूनिट क्या है, तो वी ऑल नो कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी और फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज न्यूटन. बट हाउ कैन वी फाइंड द यूनिट ऑफ फोर्स बाय यूजिंग दिस इक्वेशन और बाय यूजिंग दिस इक्वेशन? बिकॉज इस इक्वेशन से तो हमें जो इसका यूनिट पता चल रहा है वो कुछ इस तरह से होगा, लाइक Q1 and Q2 it means Coulomb square over meter square, and then K is also there. So आखिर इस K का क्या यूनिट है? तो K का यूनिट को फाइंड करने के लिए we can say that this K will be equal to F R square over Q1 and Q2. तो अगर हम इस K का यूनिट फाइंड करने की कोशिश करें तो वो कुछ इस तरह से होगा. फोर्स के लिए न्यूटन, R स्क्वायर के लिए मीटर स्क्वायर
and then कूलम स्क्वायर। सो अब इस यूनिट को अगर हम यहाँ पे प्लेस करते हैं तो वी नो डैट कि ये कूलम स्क्वायर इस कूलम स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये मीटर स्क्वायर इस मीटर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। सो द रिमेनिंग यूनिट इज न्यूटन, लाइक दिस वन। सो वी कैन से दैट कि फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन है और इस तरह से हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ इस कांस्टेंट को अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम जानते हैं कि 4 इसमें कांस्टेंट है, पाई इसमें कांस्टेंट है, जो लास्ट चीज़ रह जाती है वो रह जाती है एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है 8.854 into 10⁻⁻12 farad per मीटर। सो अगर इस वैल्यू को हम प्रॉपरली कंप्यूट करेंगे तो वी कैन गेट दिस काइंड ऑफ वैल्यू विच इज़ 9 into 10⁻⁹, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 9 है। अदरवाइज अगर आप इसकी एक्चुअल वैल्यू देखना चाहें तो वो है कुछ 8.9875517 into 10⁻⁹। सो अप्रॉक्सीमेटली ये इसके बराबर होते हैं। ओके, सो नाउ अब अगर हमारे पास कोई भी दो चार्जेस मौजूद हैं लाइक चार्ज Q1 एंड Q2 और इसके दरमियान अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पता करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह से करेंगे। हम जानते हैं कि अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, लाइक चार्जेस मीन्स के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं अगर, तो ये दोनों चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये चार्ज इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा और ये चार्ज कुछ इस डायरेक्शन में रिपेल करेगा। इस चार्ज के ऊपर जो इस चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई होगी उस फोर्स को हम F(21) कहेंगे, और इस चार्ज के ऊपर जो इस चार्ज की वजह से फोर्स अप्लाई होगी उसको हम F(12) कहेंगे। एक बात याद रखिएगा कि इन दोनों चार्जेस का जो भी मैग्नीट्यूड हो, लेकिन इन दोनों चार्जेस के ऊपर जो फोर्स अप्लाई होगी वो सेम होगी। अगर अब हम इनमें से किसी भी पार्टिकल का चार्ज इंक्रीज करते हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्जन जो है वो भी इंक्रीज हो जाएगी। वाई? बिकॉज इस चार्जेस का जो मैग्नीट्यूड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन के साथ। और अगर इसी की तरह हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं तो इस डिस्टेंस को इंक्रीज करने की वजह से इनके दरमियान जो फोर्स है वो 1/r² के रिलेशन से डिक्रीज होगी, बिकॉज दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। एक चीज़ का और ख्याल रखिएगा कि ये जो r है ये इन दोनों चार्जेस के दरमियान का डिस्टेंस है, लेकिन ये जो r(12) है और ये जो r(21) है ये डिस्प्लेसमेंट है। दैट्स व्हाई दीज आर शोन थ्रू दिस यूनिट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब क्या है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है शो कर रहा है कि चार्ज ऑफ 2 जो है वो चार्ज ऑफ 1 से कितना और किस डायरेक्शन में मूव करके दूर हो रहा है, या फिर इस r(12) का मतलब है कि चार्ज 1 चार्ज 2 से किस डायरेक्शन में दूर हो रहा है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है कि डिस्टेंस जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है वो वेक्टर क्वांटिटी है। नाउ द वेयर k is the constant of proportionality which we already seen and its value depends on the medium between the charges
where epsilon naught is a permittivity of free space and its value is equal to 8.854 into 10 to the power minus 12 farad per meter, which we already seen. So what is this permittivity? The permittivity is a measure of how electric field affects or affected by the dielectric medium. Now, if we place any medium between two charges, then the force will become f of 1 2. अगर हम कोई भी दो चार्जेस के दरमियान में से कोई एक फोर्स पता करना चाह रहे हैं तो वो कुछ इस तरह से वेरी होगी कि 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर और उसके साथ 1/एप्सिलॉन r जो है मल्टीप्लाई होगा. और अगर इसी पूरी इक्वेशन को हम जानते हैं कि ये पूरी इक्वेशन f के बराबर है, तो अगर हम इसको f से रिप्लेस करेंगे तो दिस f of 1 2 विल बी इक्वल टू f अपॉन एप्सिलॉन r. So the epsilon r will be equal to f upon f of 1 2. Thank you.